What a fantastic start to 2025 by Mikel Arteta and Arsenal. Arsenal end up winning 3-1 against Brentford away from home. ये गेम एक बड़ा ट्रिकी स्टिकी वाला गेम था जो मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी because Brentford on form have been the second best team at home this season. I think joint first actually, just behind Liverpool probably in goals scored. A very tough team to go to, and even though I think Brentford with थोड़ी बहुत injuries थी, especially like Ben Mee was missing and maybe one more player was missing, Flecken came back and Nathan Collins was there, Damsgaard वगैरह सब थे, like they had a pretty good starting 11 I would say Brentford का. On the other hand, Arsenal were forced into a couple of changes. With Kai Havertz being ill, so Kai Havertz did not make the squad at all. Declan Rice had picked up a minor injury at Ipswich, तो उनको भी bench पे hold करना पड़ा and Thomas Partey started. Julian Timber थे right back पे, Saliba Gabriel center back, left back पे Calafiori made his first start in a long time. Miles Lewis Kelly को rest मिल गया. With Partey at the 6, Merino and Odegaard running the 8s, and Martinelli, Gabriel Jesus and Ethan Nwaneri, 17-year-old Ethan Nwaneri playing on the right wing. नाउ ये गेम मुझे थोड़ा सा नर्वी लग रहा था बिकॉज यू नो वी डोंट हैव द बेस्ट फॉर्म गोइंग अवे फ्रॉम होम एंड ब्रेंटफोर्ड हैव अ फैंटास्टिक फॉर्म एट होम. उसके बाद आप अपना बुकायो साका को इक्वेशन से निकाल देते हो, प्लस उसके बाद काय हैवर्ट्स इक्वेशन से निकल जाते हो, जो प्लेइंग विद अ डिप्लीटेड स्क्वाड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. एंड गेम के फर्स्ट 10 मिनट्स पे आर्सेनल वो कंट्रोलिंग. एक ही शॉट हुआ था गेम पे, वो ओडेगार्ड ने एक छक्का मार दिया था, बट लिटरली लाइक गेम हैड नथिंग एक्सेप्ट आर्सेनल हैविंग अ लॉट ऑफ पोजेशन एंड अ लॉट ऑफ पासेस. उसके बाद ब्रेंटफोर्ड ने सकर पंच किया आर्सेनल को when Odegaard got the ball and he lost it and Damsgaard played Mbeumo through. Mbeumo was 1v1 with Calafiori. उन्होंने कट इनसाइड किया एंड डेविड राय को नियर पोस्ट पे बीट कर दिया. नाउ it was a goal and it's a story of Arsenal season because Arsenal ने पूरी सीजन में चाहे फुलहम हो, चाहे एवर्टन हो, चाहे इस गेम में ब्रेंटफोर्ड हो, we concede goals from very cheap chances man. इनफैक्ट अगर आप ये एक स्टैट देखोगे, ये दिखाता है कि एक्चुअली अगर डेविड रेया की शॉट फेसिंग को आप देखो, वी फेस सम वेरी लो XG शॉट्स एंड वी एंड अप कंसीडिंग फ्रॉम देम. चाहे वो रैंडम सी फ्री किक हो, चाहे एक जस्ट अ स्ट्रेंज गोल. राहुल हिमेनेस वाला मेरे दिमाग में आता जो फुलम ने मारा था, एंड आज भी एम्बोमो ने out of nowhere Brentford had one chance and they scored that goal, and that was a gutting punch because Brentford are a great defensive team as well. They play with a back three that turns into a back five, जो low block में जा सकते हैं, mid block में जा सकते हैं, and the more you chase the game, the more threat they have of scoring against you from Visa and Mbeumo. But Arsenal ने equalize किया Gabriel Jesus के साथ, and ball थोड़ा सा बॉक्स के आसपास पिन बॉल टाइप्स हो रहा था, भसड़ मच रही थी. थॉमस पार्टे एक शॉट लेते हैं जो फ्लेकन सेव करते हैं एंड गैब्रियल हेसूस डाइज इन विद द हेडर एंड इक्वलाइजेस फॉर आर्सेनल. गैब्रियल हेसूस ने अपने लास्ट 11 शॉट से 6 गोल मारे हैं. बिफोर दैट हिज प्रीवियस 6 गोल्स केम फ्रॉम 83 शॉट्स. एंड इसका लिटरल एक ही आप इससे लेसन ले सकते हो, यू हैव टू कीप ट्राइंग, नॉट लाइक मेहनत करो वाला ट्राइंग. जस्ट टेक द शॉट डूड, जस्ट टेक द शॉट. A lot of times Arsenal का जो attacking play होता है बड़ा risk averse होता है, जहाँ पे we keep passing or play the extra pass or try to be extra cute, the meme that Arsenal always try to walk it in. This game, especially Gabriel Jesus in the last few games, has just been taking a shot. Sometimes he misses, of course, sometimes वो छक्का मार देता है, sometimes it just goes wide. In this game also he had plenty of shots. एक से his anticipation really worked well and Arsenal equalized through Gabriel Jesus. First half end होता है, 1-1 चलता है, and इस first half में Arsenal की performance उतनी अच्छी नहीं थी because of the goal we conceded. The left hand side did not work really well. Calafiori of course was at fault a little bit for that goal जो Bryan Mbeumo ने मारा. Merino looked a little lethargic and Martinelli, even though he was running the channels, running the flanks, कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं कर पाया था. इसी के साथ बिफोर हाफ टाइम ऑल्सो ब्रेंटफोर्ड हैड अनदर चांस टू स्कोर ऑफ लाइक अ रैंडम चांस दैट दे क्रिएटेड जब Lewis Potter was put through and he takes a shot जो राया सेव करते हैं, बट राया के पाम से लग के इट स्टार्ट्स रोलिंग टुवर्ड्स द गोल. राया हैज़ टू डाइव एंड क्लियर इट ऑफ द लाइन. फिर मतलब डेविड राय could have conceded another comedy goal in this game and that would have clearly just अगर ब्रेंटफोर्ड 2-0 ऊपर चली जाती, that would have clearly put the game to bed, but thankfully Gabriel Jesus ने equalize कर लिया. सेकेंड हाफ में आर्सेनल ज़्यादा इंटेंट के साथ बाहर आई थी. वी स्टार्टेड कंट्रोलिंग द पोजेशन मोर एंड इस पॉइंट पे मैं शाउट आउट देना चाहूँगा ईथन वनेरी को. ईथन वनेरी हैड अ ग्रेट फर्स्ट हाफ एज वेल. इन द सेकेंड हाफ आई थिंक ही वेंट अनदर लेवल. मतलब ही स्टार्टेड टेकिंग ऑन हिज प्लेयर्स मोर, ज़्यादा नटमेक करने लग गया, स्टार्टेड नॉकिंग द बॉल पास्ट.
एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस गाय इज जस्ट 17. पूरे सीजन कॉल आ रहे थे कि जब ओडेगार्ड इंजर हुआ था वनैरी को खिलाना चाहिए, वनैरी को खिलाना चाहिए. एंड आई थिंक द फैक्ट दैट वनैरी हैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैज प्लेड मोर मिनट्स देन बुकायो साका शोज दैट वी ट्रस्ट वनैरी. इट्स जस्ट दैट वी आर मैनेजिंग हिम. हम एक पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि हमने बुकायो साका को ओवर प्ले कर लिया है फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर्स एंड देन वी फाइनली स्टार्ट मैनेजिंग आवर यूथ प्लेयर्स. चाहे वो माइल्स लुइस स्केली हो, चाहे वो ईथन वनैरी हो, वी आर गिविंग देम टाइम टू ग्रो एंड डेवलप एंड टुडे वाज द राइट गेम फॉर हिम टू प्ले. आज वो राइट विंग से पूरा कमांड कर रहा था एंड आई एम सो श्योर इन द फ्यूचर ही विल बी इवन मोर लीथल. इट रिमाइंडेड मी ऑफ लाइक अ एक्चुअली गुड यंगर फिल फोर्डन जो is like confident on the ball, runs the channels, cuts inside, plays those cute passes, cross अच्छे से डालता है. Somebody who had a real impact on the game. And Ethan Anaria, what a game. I was applauding. He was tracking back, he was passing, he was getting through pressure, he was nutmegging people. बहुत बढ़िया गेम था Ethan Anaria का. अगर आपने highlights नहीं देखे, I encourage you to go on Twitter and Ethan Anaria के एक comp देख लीजिए. उसी के साथ सेकंड हाफ में जैसे मैंने बोला आर्सेनल ज़्यादा इंटेंट, ईथन अनेरी अच्छा खेल रहा था, मार्टिनेली थोड़ा ज़्यादा इंटेंट के साथ आ रहे थे, मिकेल मेरिनो स्टार्टेड लुकिंग मोर प्रोग्रेसिव एंड आर्सेनल्स सेकंड गोल इनएविटेबली केम थ्रू अ सेट पीस. देखो दिस इज नॉट अ सेट पीस एफसी गोल, इट वाज अ फुल भसड़ एफसी गोल बिकॉज क्रॉस आता है ईथन अनेरी के हु इज टेकिंग अ कॉर्नर्स, फ्लेकन फेल्स टू क्लियर इट, गैब्रियल हेसूस एक शॉट मारते हैं, वो गोल लाइन पे ब्लॉक हो जाता है एंड इट कम्स स्ट्रेट टू द पाथ ऑफ मिकेल मेरिनो हु crashes it home and Arsenal take a 2-1 lead against Brentford. Set piece FC back at it again. Even though Arsenal ने set piece से गोल कर दिया था, I do have to give credit to Brentford. उन्होंने हमारे कॉर्नर्स बड़े मिनिमाइज कर लिए थे. हम मैन यूनाइटेड वाली गेम के ऊपर बात कर रहे थे जिसमें आर्सेनल ने 16 कॉर्नर्स विन करे थे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. Brentford reduced us to 3 corners, which is the least amount of corners we have won in a single Premier League game this season. So shout out to Brentford. They tried to minimize our threat, but that is what Arsenal को दूसरी टीम से सेपरेट करता है. जब टफ हो जाती हैं गेम्स, जब आपके स्टार प्लेयर्स नहीं हैं, जब आपका फॉरवर्ड नहीं है, यू आर डिप्लीटेड, यू आर वीक, यू हैव टू फाइंड वेज टू विन. यही तो हम कहते हैं, बेस्ट टीम्स फाइंड अ वे टू विन. एंड या वी माइट नॉट हैव अ मोहम्मद साला, वी माइट नॉट हैव अ केविन डे ब्रुयने और अर्लिंग हालैंड, या हमारे पास कोल पामर जैसा मैवरिक शायद से नहीं होगा, बट in tough situations we do use our set pieces because game was drawn at 1-1 and ऐसा हो सकता था Brentford actually score another goal from a sucker punch, but Arsenal ने एक अच्छी सी deservedly ले ली from a set piece and Mikel Merino gets another goal for Arsenal. Arsenal's third goal comes very soon जब Gabriel Martinelli एक बॉल स्मैश करते हैं in the net. एक अगेन क्रॉस आता है ईथन अनेरी से, ब्रेंटफोर्ड क्लियर करती है बट वो क्लियरेंस सीधा गैब्रियल मार्टिनेली पे पहुंचती है, वन टच हाफ वॉली गोल, आर्सेनल अब 3-1. एंड उसके बाद से गेम बहुत डेड सा हो गया. ब्रेंटफोर्ड को हमने उसके बाद एक भी चांस नहीं लिया. ब्रेंटफोर्ड हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट, वो दोनों फर्स्ट हाफ में आए थे. उसके बाद ब्रेंटफोर्ड का कोई भी शॉट नहीं आया था. इनफैक्ट द फैक्ट कि लास्ट शॉट इन द गेम केम इन द 63rd मिनट से पता चल जाता है कि इस गेम की इंटेंसिटी कितनी ड्रॉप हो गई थी. आर्सेनल वर ओके बीइंग पैसिव. इतने रन ऑफ गेम्स आ रहे हैं, हम अगला खेलेंगे ब्राइटन अवे, उसके बाद हमें कार्लिंग कप या फिर कैराबाओ कप खेलना है अगेंस्ट न्यूकासल, उसके बाद FA कप गेम अगेंस्ट यूनाइटेड एंड देन विला एंड देन नॉर्थ लंडन डार्बी भी है कहीं पे बीच पे. सो द पॉइंट इज लाइक देयर इज अ लॉन्ग रन ऑफ गेम्स एंड टफ गेम्स कमिंग अप फॉर आर्सेनल. एंड सो आई वाज मोर देन हैप्पी कि जब हम 3-1 लीड लेने के बाद वी स्टार्टेड लाइक बीइंग मोर पैसिव, स्टार्टेड कंट्रोलिंग द गेम अ लिटिल मोर. ब्रेंटफोर्ड को एक भी चांस नहीं दिया. And the game ended fairly well, man. I was very happy. It was a tough stadium to go to, one which has not been the easiest place to go to for most teams. And हमने Brentford को काफ़ी easily 3-1 हरा दिया था. It could have been a tricky game, but we come out winners 3-1. For me, man of the match has to be Gabriel Jesus. The guy just does not give up. He's in the form of his life. बहुत टाइम से 6 गोल मारे हैं जैसे मैंने कहा 11 शॉट्स में से. And yeah, he is the guy in form, man. He has to be played as much as possible because not only can he go out of form, but कभी कभी उनको injuries भी हो जाती है. We just hope Gabriel Jesus ये form continue करता है. एक डिसअपॉइंटमेंट इस गेम से ये आया दैट यूरियन टिम्बर को येलो कार्ड मिल गया. उनको एक गेम और येलो कार्ड अवॉइड करना था ताकि वो कंटिन्यू कर पाते आर्सेनल के लिए, बट ही गॉट अ येलो कार्ड एंड नाउ ही सस्पेंडेड फॉर द मैच अगेंस्ट ब्राइटन, विच मीन्स थॉमस पार्टे विल प्रॉब्ली हैव टू फिल इन एट राइट बैक अगेंस्ट कारू मिटोमा, विच इज नेवर गोना बी एन ईजी थिंग. मिटोमा इज अ ट्रिकी टफ कस्टमर यार. यूरियन टिम्बर आज बहुत अच्छा गेम खेले थे, गॉट अ स्टूपिड येलो कार्ड बाय द वे. मतलब स्टूपिड नॉट फ्रॉम हिज मिस्टेक बट द रेफरी वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी. But and we're gonna miss him against Brighton यार. मतलब वो डिफेंस में अटैक में टिम्बर was absolutely fantastic.
One last thing I will say is about the referee. I'm sorry, Peter Banks is one of the most disgusting and stupid referees I have ever seen. गैब्रियल हेसूस को फेस पे बार्ज करते हैं, उसकी लिप से खून निकलने लगता है, दांत से खून निकलने लगता है. नो फाउल गिवन बाय द रेफरी. एक भसड़ में गैब्रियल हेसूस की शर्ट खींच के फाड़ दी जाती है एंड द फाउल इज गिवन अगेंस्ट गैब्रियल हेसूस. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग रेफरिंग परफॉर्मेंसेज आई हैव एवर सीन. 2 येलो कार्ड्स फॉर आर्सेनल, 1 येलो कार्ड फॉर Brentford, and honestly the referee was blind. It is so annoying to come up against these stupid referees. आज एक referee decision ने हमें loss नहीं दिया, but we faced these terrible referees all season, man. Declan Rice red card, Saliba का random red card, and you've seen these incidents not be punished throughout the season. And so, I mean, what can you do, man? Trossard being sent off against City for kicking the ball away. Oh my God. And so it's just very annoying जब आप रेफरीज के आते हो. Thankfully we did not suffer in this game. But yeah, 3 दिन बाद हम खेलते हैं ब्राइटन को इन द प्रीमियर लीग. नाउ वी आर 6 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल, विद लिवरपूल हैविंग अ गेम इन हैंड. देखो यार, टाइटल रेस का तो पता नहीं, बट सिंपल सी बात यही है, आर्सेनल जस्ट हैव टू कीप विनिंग देयर गेम्स. ट्राई टू मिनिमाइज ड्रॉपिंग पॉइंट्स. ऐसी गेम्स आएंगी जैसे फुलम थी या एवर्टन थी या आज ब्रेंटफोर्ड हो सकती थी, वेर यू ड्रॉप पॉइंट्स. You just have to hope Liverpool will slip up at some point. देखो, if Liverpool don't lose a game from this point till the end of the season, fair enough, man, they deserve to be champions. But Arsenal have to handle their business ताकि अगर Liverpool कहीं पे slip करे, we have the opportunity to snatch their chain. No title talks, 1 game at a time, 3 points लो, आगे बढ़ो. Brighton again is in potential for a revenge game क्योंकि उन्होंने ड्रॉ किया था हमारे साथ एट आर होम. ऑफ कोर्स उस गेम में डेक्लन राइस गॉट सेंट ऑफ एट द 55th मिनट. एब्सोल्युटली क्रेजी सीन. इट स्टिल पिसेस मी ऑफ, बट अब जो है सो है यार. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, वेयर ऑन अ वीडियो 25K, एंड या सी यू ऑल सून. टाटा बाय बाय, सी यू.